afternoon to all of you, all the friends out there, and happy CA Day to all the chartered accountants who are attending this, and happy GST Day to all the participants who are here. Today, 5 years of GST have completed in India, and this is 74th year in which basically we are celebrating CA Day. So happy occasions. Till the time the GST Council meeting minutes were not out, we thought of doing a program today on completion of 5 years of GST. But when we saw the council minutes, we realized that it makes more sense to actually discuss what has happened over last 2 days. And in fact, kind of the way things have happened or things have been recommended by the GST Council in last 2 days, it in fact brings out quite clearly the flavor of GST which has been there in last 2 years. तो मैं टॉपिक पे जाऊं उसके पहले अगर 5 साल की बात करें स्पेसिफिकली जीएसटी की एंड स्पेसिफिकली the way we have been associated over GST, I think one thing which all of us will agree to, that completion of 5 years is a milestone. And whenever we achieve a milestone, we think of celebrating it. So 5 साल को हम बहुत सारी चीजों के साथ लिंक करके देख सकते हैं. Specifically in a chartered accountant's life, when we start with CPT and we complete up to final, it approximately takes 4 to 5 years. So that feeling at the end of 5 years is quite a nice, interesting feeling. If we look at from the perspective of a chartered accountant who has already become a CA, so from ACA to FCA की जो journey है, that is also 5 years, and that's the initial years where we try to understand how is the profession, how do we do things, and then एक seniority का जो एक tag आता है, that comes when we complete 5 years. अगर इस GST को compare करना है either of the two, probably the right thing would be to compare it from the perspective of a little infant baby जिसने 5 साल पूरे किए हैं and now it is ready to go to the school. और मैं क्यों ये चीज बोल रहा हूँ, it is ready to go to the school because पिछले 5 साल में इस लॉ का एक हम हनीमून पीरियड या being too new, तो हमने ये चीज की बात बहुत करी. कई बार आपसे डिस्कशन में या अदरवाइज ये चीज हमने एनालाइज करी होगी. हम कहते थे जीएसटी लॉ में ये चीज अच्छी, कानून नया है, सेटल होने में थोड़ा समय लगेगा, सो लेट इट सेटल डाउन. अभी हम कह सकते हैं ये शुरुआती फेज है इस कानून का, जिसको इन इंग्लिश वी यूज द टर्म कॉल्ड एज टीथिंग इशू. इट्स अ टीथिंग इशू व्हिच इज देयर. ओके, बट व्हेन यू लुक एट इट आफ्टर 5 years, what has happened, हम कहाँ पर है. and I think if you really compare it, तो 5 साल बाद भी हम कह सकते हैं कि भी लॉ उतना डेवलप नहीं हुआ है जितना you would have expected that it would have settled in 5 years. It is still in the phase of developing. Specifically, the manner in which the changes are coming in, it clearly comes out that it will take some time कि जो interpretational issues है कुछ, some compliances जो हमको लगता है GST आने के बाद बढ़ गई हैं, इनको सेटल होने में और इनको एक ओवरऑल इकोसिस्टम में एब्जॉर्ब करने में समय लगेगा. But from a businessman's point of view, if any business owner is there, apart from all of us who are into compliance and advisory, अगर कोई businessman है, I think he will definitely say that on an overall picture, GST has been very good. It has brought lot of certainty in terms of tax, specifically indirect tax. और indirect tax का scope direct tax से थोड़ा सा ज्यादा होता है. All of us understand again from a business perspective because ये आपकी top line को hit करता है. So when it hits the top line, making an error in terms of GST or indirect tax can be more costly as compared to if somebody makes an error on the direct tax front. Because ultimately indirect tax we have to collect from the customer, and in case we make an error there, then the problem is we can't collect it from the customer, but rather we have to pay it from our own pocket. So suddenly it becomes a direct tax. Now in this 5 years, 1 or 2 things which probably I would say which still has not settled, and because of which probably all of us are looking at GST Council, lawmakers, government to settle it, is the kind of double proceedings which generally takes place these days, where we see a lot of notices coming up. Specifically पिछले 6 महीने में, ever since this period of COVID has settled a bit and things have come back to normal,
हम सब के पास किसी न किसी तरीके का नोटिस है, चाहे वो एक स्क्रूटनी का नोटिस हो, ऑडिट का नोटिस हो, कोई समन प्रोसीडिंग्स हो, चाहे एंटी इवेजन से या इन्वेस्टिगेशन विंग से, मे बी सम नोटिस फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। आप जिस स्टेट में, उस स्टेट के बाहर आपके पास में कोई नोटिस है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स टू अवर माइंड इज कि मैं एक स्पेसिफिक सिटी या स्टेट में हूँ, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर या स्टेट के पास में है, और सडनली मेरे को नोटिस कोई दूसरी अथॉरिटी इशू कर रही है। एंड देन फिर हम ये चीज पूछते हैं कि क्या ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या नहीं है। तो उसका एक आंसर ये है कि ये एक इशू है जो एक एडजुडिकेशन का इशू है, जो गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी जिसमें क्लैरिटी आने में समय लगेगा। So this is that one thing which probably on which government is working. They are also trying to find a solution that how a specific assessee can be issued a notice in a sense he does not feel harassed. वो harassed और परेशान फील नहीं करे, ये कहते हुए कि multiple agencies हैं जो उनको business करने के पीछे पड़ी हुई हैं. But having said that, on an overall basis, this law is a good law. Now, coming to what has happened in the last 47th GST Council meeting, जहां पे उन्होंने काफी सारे चेंजेस रिकमेंड करे हैं. आपने अगर अदरवाइज प्रेस रिलीज देखा होगा तो यू वुड हैव रियलाइज्ड दिस प्रेस रिलीज अ वेरी लॉन्ग प्रेस रिलीज. इससे पहले वाले जितने भी आप प्रेस रिलीजेस कोई भी जीएसटी काउंसिल मीटिंग के देखेंगे तो इतना लंबा प्रेस रिलीज शायद ही आपको इन लास्ट 5 इयर्स देखने को मिला होगा. बट मोर इम्पोर्टेंटली जब आप इसके कंटेंट में जाते हैं, यू रियलाइज दैट गवर्नमेंट ने एक चीज इसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करी है, मे बी इन ए करेक्ट मैनर और इनकरेक्ट मैनर, वो एक अलग पॉइंट है डिस्कशन का. बट एक चीज जो कोशिश करी है वो कोशिश ये करी है कि लिटिगेशन को हम जितना कम कर सके उतना कम कर दें. मीनिंग देयर बाय उन्होंने अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन जितनी चीजों के वो क्लियरली लेके आ सकते थे, दे हैव ट्राइड टू ब्रिंग इन. स्पेसिफिकली रेट्स को लेके जहां जहां पे भी रिफंड्स को लेके प्रॉब्लम्स थे, जहां जहां पे भी सम इंडस्ट्री वाज सेइंग कि मैं जो टैक्स लगा कर देता हूं उसके बावजूद मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत सारा है एट वन एंड, और दूसरे एंड पे गवर्नमेंट ऑफिशियल मुझे कह रहे हैं कि आप सारा टैक्स इनपुट से क्यों पे करते हैं, कैश में क्यों नहीं पे करते. तो दिस इज लाइक डबल इम्पैक्ट. एक तरफ तो मेरे पास क्रेडिट अक्यूमुलेटेड बहुत सारा, और दूसरी तरफ मुझे ये नोटिस आता है कि मैं टैक्स कैश में क्यों पे कर रहा हूँ. In all these things, probably government has tried to bring in a clarity by saying that now inverted duty structure को हम जितना ठीक कर सकते हैं वो rate rationalize करके ठीक करने की कोशिश करेंगे. So that's the word which they have used, which is called as rate rationalization. So what we will do is हम sector wise क्या क्या changes हैं उनको brief में we will just go through them. We will see from our side what is the impact वो आपके ऊपर हो सकता है in general. Apart from sector-wise rate changes, there are other changes which are very important and which are applicable for everybody, not only upon you or your industry, but otherwise it is applicable on a general compliance level. So that we will also try to look at that what we have to do. One request which I will put before all of you is please keep your microphones on mute so that बाकी participants disturb ना हो, and wherever you have a question, we will go to that question at that point. Okay. फर्स्ट थिंग, जो भी हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं इसका हमारे पास कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर नहीं है. इट्स अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द जीएसटी काउंसिल. बट यस, द मैनर इन विच इट वर्क्स इज जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स and after that a notification or a circular, whatever is required, is issued. Good thing which the council has done is they have tried to give a tentative date also. Tentative date that all these changes would be made applicable from a specific date, like for example rate changes from 18th of July 2022. So probably when the notification will come, it will have a date and it will have a date of 18th July 2022. अब हम सबके पास में approximately 15 से 17 दिन का टाइम है अगर वो रेट हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर रही है या हमारे सप्लायर के ऊपर इम्पैक्ट कर रही है, and we can get ourselves prepared. First impact is basically if we discuss about infrastructure and all those people who are into construction or maybe providing services in terms of developing infrastructure and specifically to government and be it a central government or a state government organization. तो जहां पे भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं ऑन अ लंप सम रेट बेसिस वेयर द मटेरियल एंड लेबर बोथ आर इन्वॉल्व, हम सब जानते हैं वहां पे 12% का रेट है एग्जिस्टिंग ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी व्हिच नीड्स टू बी डन. नॉट इनफैक्ट उनके ऊपर 12%, बट उनकी जो नीचे वाली चेन है on them also the rate of tax applicable is 12%. that is the first subcontractor. उसके आगे वालों पे obviously then rate is subsequently something different. January 2022 के अंदर
ये जो 12% का रेट था, this rate was applicable not only for services or works contract given to government or state government, but in fact कोई governmental authority या कुछ specific government entities को भी अगर ये services दी जा रही थी, that was also covered under 12%. From January 2022, governmental authority और government entity इन दोनों के रिस्पेक्ट में जो भी काम किए जा रहे थे उसको 12% से 18% के अंदर लेकर आने. नाउ जीएसटी काउंसिल हैज रिकमेंडेड अब यही काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के लिए करे जा रहे हैं, and if they are to be done from with effect from 18th of July 2022, now all of them will also fall under 18%. तो वो सभी लोग जो सरकार के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स या वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइंस बिछाने का काम कर रहे हैं, कैनाल बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, be it for a central government, state government, local authority, from July 2022, now all of them will be required to pay 18% tax. Similarly, वो सब लोग जो अर्थ वर्क का काम कर रहे थे गवर्नमेंट के लिए, उसके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स था वो 5% था. From July 2022, it will be increased to 12%. अपार्ट फ्रॉम दैट वो सभी लोग जो चाहे कोई भी रिसिपिएंट हो, चाहे वो कोई प्राइवेट पार्टी हो या एक गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए काम कर रहे हो, विच इज द थर्ड पॉइंट, irrespective of the recipient, if they were engaged in construction of road, bridges या any work done for Indian Railways, मेट्रो बनाने का काम था, ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट या कोई क्रेमेटोरियम बना रहे थे, उस पे रेट 12% था. दैट इज आल्सो नाउ सेट टू इंक्रीज टू 18%. So now if it is a road constructed from private party or public authority, अगर वही पब्लिक रोड है जो पब्लिक यूज के लिए आने वाली, उस पे जो रेट कम करी गई थी पिछले साल 12% था, now it is again set to increase to 18%. What is the impact of this rate change? This rate change has a lot of impact. फर्स्ट थिंग, गवर्नमेंट ने ये चीज क्लियर कर दिया है कि इन सब कॉन्ट्रैक्टर्स के पास में एज पर गवर्नमेंट अंडरस्टैंडिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो इनवर्ट जो है वो 12% से ज्यादा का है. इनवेरिएबली स्पेसिफिकली जहां पे भी स्टील, सीमेंट ये एक मेजर रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो वो 18 और 28% की रेट के अंदर है. इसका कंपोनेंट काफी बड़ा है. तो वो अगर ऑलरेडी 18 में और अगर ये सब लोग 12% में टैक्स पे करते हैं तो वहां पे क्रेडिट अक्यूमुलेशन का इशू है. वो क्रेडिट अक्यूमुलेशन खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने सेड दैट नाउ रेट इज सेट टू इंक्रीज टू 18%. इन पे रेट चेंज होगा, सब कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी ऑटोमेटिकली रेट चेंज होगा एंड दे विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू पे 18%. वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज हर स्टेट गवर्नमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करती है टेंडर के थ्रू तो उसके अपनी कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं. वो सभी गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट जहां पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करें कॉन्ट्रैक्टर को एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन ऑल इंक्लूसिव बेसिस, जहां पे टैक्स का पैसा अलग से नहीं दिया जाता है, पर जो भी अमाउंट तय किया गया है दैट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ टैक्स आल्सो. देयर प्रोबेबली ऑल ऑफ देम हैव टू बेसिकली रियली वर्क आउट एंड सी कि कॉन्ट्रैक्ट की वर्डिंग्स क्या है. इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन इन अ मैनर व्हिच स्पेसिफिकली सेज दैट इट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस और कोई भी टैक्सेशन का इंक्रीज या डिक्रीज का इंपैक्ट वो अमाउंट के ऊपर नहीं आने वाला है, then suddenly it means that after July 2022 all of these contracts they will have to have a hit of 6%. 6% का जो एडिशनल हिट है वो कॉन्ट्रैक्टर को अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, बिकॉज अप टिल नाउ अगर वो रिफंड के लिए एलिजिबल थी तो वो रिफंड फाइल कर सकते थे या फिर उस क्रेडिट को किसी और जगह यूज कर सकते थे. एडिशनल पैसा रिसिपिएंट से नहीं मिलता था. गोइंग फॉरवर्ड भी कोई एडिशनल पैसा नहीं मिलेगा, बट तो उस क्रेडिट को वो सारा एडिशनल जो 6% का गैप है वो ईट अप कर जाएगा. आई सॉ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स इन लास्ट 2 days और जहां पर मैंने देखा 2 तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका क्लाइंट उड़ीसा के लिए काम कर रहा है या इफ यू आर बेसिकली डूइंग अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इन उड़ीसा, देन देयर द कांसेप्ट इज दे गिव अमाउंट ऑफ वैल्यू प्लस टैक्स एंड दैट इज टैक्स. सो दैट्स व्हाई ये रेट चेंज का ज्यादा इंपैक्ट नहीं है. बट हमारी राजस्थान सरकार स्पेसिफिकली जो कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड करती है वहां पे मेजॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑन ऑल इंक्लूसिव बेसिस. इन सम कॉन्ट्रैक्ट्स दे हैव अ क्लॉज जहां पे वो कहते हैं टैक्सेशन का इंपैक्ट का इंक्रीज डिक्रीज हम देंगे डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस. इन सम कॉन्ट्रैक्ट्स इट इज साइलेंट. Wherever it is silent, I think there the contractor has to reach to the recipient, go back, explain it to them कि 6% से contract viable है या नहीं, and see to it what needs to be done. By this rate change, contract की जो terms हैं उसके ऊपर कोई impact नहीं पड़ता है, because it's an agreement between two parties. तो जब 2 लोगों ने तय कर लिया कि उनको इस रेट पे काम करना है, तो कानून में अगर कोई बदलाव आता है तो उस कारण से अगर कॉन्ट्रैक्ट में उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्लॉज नहीं है,
then you can't force to the recipient to say कि आपको tax का additional पैसा चाहिए. So that is one important aspect on this industry which is going to have implication. Now, second industry which is impacted by the recommendations of the council is healthcare. और यहाँ पे कुछ लोग हैं who are specifically dealing in healthcare. वे सभी लोग specifically who are running a hospital or a dispensary or a nursing home. Now up till now हम सब जानते हैं हेल्थ केयर के ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स लगाने का कभी इंटेंशन नहीं है. इनफैक्ट टू स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट नेवर वांटेड टू टैक्स देम. However, this report, when it went that there are hospitals which charge more than 5,000 rupees per day as a package, और इस पैकेज के ऊपर जब टैक्स लगाया जाता है, then in that case there are all high-end hospitals where people who go there are those people who can afford these services. And there a proposal came to the council that why not to tax them at 5% without input tax credit. So going forward, the proposal is from 18th of July 2022, all the hospitals who have a room rent of more than 5,000 rupees per day, they will be required to pay GST at 5% और उनको कोई input tax credit नहीं मिलेगा. 5% इसलिए क्योंकि कंसेशनल रेट है. कंसेशनल रेट लगाने के पीछे का पर्पस ये है कि आप पीछे को इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने जो खर्चों पे आपका टैक्स लग रहा है सर्विस देने के लिए, उसको आप इस्तेमाल मत करिए और आप एक 5% की रेट के ऊपर सरकार को टैक्स दीजिए. इट इज एज गुड एज ये 5% का टैक्स मोस्टली पीपल यू हैव टू कलेक्ट इट फ्रॉम द पेशेंट एंड पे टू द गवर्नमेंट. प्लस उसके अलावा स्पेसिफिकली ऑल दोज हु आर गिविंग दिस ब्लड बैंक सर्विसेज और जो बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट वाली फैसिलिटीज दे रहे हैं, एग्जेम्प्ट थी. इन सब के ऊपर नाउ गवर्नमेंट इज सेइंग दे वांट टू बेसिकली चार्ज टैक्स. आईवीएफ फैसिलिटी के ऊपर एक डिस्प्यूट था कि हेल्थ केयर में आएगा नहीं आएगा. वहां पे दे आर सेइंग दैट दे विल ब्रिंग अ क्लैरिफिकेशन दैट इट विल बी एन एग्जेम्प्टेड सर्विस. नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग इन दिस, ये क्यों इंटरेस्टिंग है? तो बिकॉज ये हो सकता है आपकी इंडस्ट्री को अगर नहीं करता, बट एज अ पेशेंट it is going to hit you if you're looking for good quality medical services. The important aspect in this case is, अगर ये जो अमेंडमेंट आता है और ये अमेंडमेंट इस तरीके से आता है कि सरकार 5,000 से ऊपर जहां पर डे रूम रेंट है और उसके ऊपर अगर 5% का टैक्स लगाने वाली है, तब वहां थोड़ी एम्बिग्यूटी है इस अमेंडमेंट में जो रह जाएगी. अगर सरकार हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर ये एक एक्सेप्शन के तौर पे लाती है कि हेल्थ केयर सर्विस में अब जो भी 5,000 से ऊपर का रूम रेंट होगा जिसमें आईसीयू के चार्जेस हटा दें, उसके अलावा और कुछ होगा तो उस पर हम 5% टैक्स लगाना चाहते हैं, देयर इन ऑल दोस केसेस इट वुड बी प्रॉपर एंड करेक्ट अगर वो टैक्स लाइबिलिटी लग रही है. अदरवाइज एक नए लिटिगेशन को ये जन्म दे सकता है. सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट व्हिच नीड्स टू बी लुक्ड एट. बट इसके होने से ये कि अब एक नई इंडस्ट्री जीएसटी के दायरे में आएंगी. बहुत सारे हॉस्पिटल आज तक ऐसे थे क्योंकि वो प्योरली एग्जेम्प्टेड सर्विसेज देते थे तो उन्होंने कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा था. गोइंग फॉरवर्ड दे विल बी रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन, फाइल रिटर्न्स ऑन अ मंथली बेसिस. इनपुट टैक्स क्रेडिट वो जरूर क्लेम नहीं कर सकते, बट वी ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड वंस यू टेक अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत सारे और इम्प्लीकेशंस हैं जो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी के ऊपर आते हैं, स्पेसिफिकली रिवर्स चार्ज के संदर्भ में. So this is going to impact एक नई सेट ऑफ इंडस्ट्री है जो जीएसटी के दायरे में जुलाई 2018 के बाद आ जाएगी. माइंड यू ये स्पेसिफिक कंसल्टिंग, एडवाइजरी, डॉक्टर विजिट उन सब के ऊपर नहीं है. वेयर अ पेशेंट इज गेटिंग एडमिटेड और वहां पर एज अ पैकेज व्हेन दे आर टेकिंग सर्विसेज, जिसके अंदर इंक्लूड्स फूड, मेडिसिन, डॉक्टर कंसल्टेशन, रूम स्टे, ऑल ऑफ दैट वुड बिकम टैक्सेबल है. थर्ड, हमारे जयपुर का बहुत बड़ा प्रोमिनेंट सेक्टर जिसके ऊपर इम्पैक्ट है रेट चेंज का, दैट इज टैक्सेबिलिटी रेट चेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ कट एंड पॉलिश डायमंड्स. तो कट एंड पॉलिश डायमंड्स के ऊपर अभी तक जो रेट थी वो 0.25% थी. नाउ दैट इज सेट टू इंक्रीज टू 1.5%. हम जानते हैं ऑलरेडी पिछले कुछ समय में गोल्ड, सिल्वर इनके रिस्पेक्ट में रेट के ऊपर काफी चर्चा थी. रोल आउट करने का प्लान था, फिर काफी एजिटेशन हुआ, दैट रोल आउट वाज स्टॉप्ड. बट नाउ एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ कट एंड पॉलिश डायमंड गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स कि यहाँ पर क्रेडिट अक्यूमुलेशन है, बिकॉज जो बाकी सब सर्विसेज जो इस्तेमाल करी जाती है स्पेसिफिकली इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ डायमंड, वहां पर जॉब वर्क या जो लेबर की सर्विसेज पे जो जीएसटी लगता है वो 0.25 से ज्यादा है, या फिर जो 5% का टैक्स लगता है, और वो पूरा इस्तेमाल नहीं हो सकता. और बिकॉज वो पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है इसलिए रेट इंक्रीज करने की जरूरत है. सो दिस इज गोइंग टू बी वन एस्पेक्ट जो रेट इंक्रीज है. सेकेंड एस्पेक्ट जो प्रेस रिलीज में नहीं है
बट द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जो चीज बोली, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज गोल्ड के मूवमेंट के ऊपर अब ईवे बिल की एप्लीकेबिलिटी आ सकती है, और इसका डिसीजन जीएसटी काउंसिल ने हर स्टेट गवर्नमेंट के पास में छोड़ दिया है. सो मीनिंग देयर बाय नाउ इफ देर इज अ मूवमेंट ऑफ गोल्ड हैपनिंग, तो अभी तक ज्वेलरी, प्रीशियस आइटम्स, ये सब थे जो एक्सेप्शन कैटेगरी में थे, जिसके ऊपर ईवे बिल की एप्लीकेबिलिटी नहीं थी अगर उसका मूवमेंट मोटराइज्ड व्हीकल में एक जगह से दूसरी जगह हो रहा था. नाउ गोइंग फॉरवर्ड वेर एवर अ मूवमेंट इज गोइंग टू बी देयर, जिस स्टेट के अंदर मूवमेंट है, जहां पे भी इंट्रा स्टेट मूवमेंट होने वाला है, विद इन स्टेट जो मूवमेंट होने वाला है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो अपने रूल्स तय कर सकते हैं कि क्या उनको गोल्ड के मूवमेंट के ऊपर जीएसटी लगाना है या नहीं लगा, सॉरी जीएसटी नहीं, उसके ऊपर ईवे बिल की रिक्वायरमेंट रखनी है या नहीं रखनी है. सब्जेक्ट टू दो चीजें हैं. इसकी जो लिमिट होगी वो लिमिट 2 लाख रुपए से ऊपर की होगी, मतलब द मूवमेंट हैज टू बी मोर देन 2 लाख रुपीज. सेकेंड, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि अगर ईवे बिल के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज हम जानते हैं, व्हीकल नंबर लिखा हुआ था, बिकॉज इट्स अ प्रेशियस आइटम, so there is a possibility of robbery or otherwise, or safety and security of that particular goods. So e-way bill जो बनेगा उस केस में वहां पर व्हीकल नंबर डिस्क्लोज नहीं करा जाएगा e-way bill के अंदर, so that secrecy is maintained in terms of where the movement is happening, so that it is not available to the public at large, and वो मूवमेंट को सिक्योर किया जा सकते हैं. बट कंप्लायंस पर्पस के लिए ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड. अब ईवे बिल कैसे जनरेट करना होगा, मोटराइज्ड व्हीकल में होगा, या अगर कोई इंसान अपनी पॉकेट में लेके जा रहा है उसको तब होगा, या कोरियर के थ्रू जा रहा है तब होगा, इन सब के लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग इन राजस्थान, और राजस्थान सरकार इसके रिस्पेक्ट में क्या रूल्स लेके आती है, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. बट वन थिंग इज दैट जीएसटी काउंसिल एटलीस्ट क्लियर्ड इट कि हर स्टेट गवर्नमेंट को इसके रिस्पेक्ट में पावर दी जा रही है. तो ये दो चेंजेस हैं जो ज्वेलरी सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट करेंगे. स्पेसिफिकली आई थिंक रेट इंक्रीज का उतना इंपैक्ट नहीं है जितना ई-वे बिल की कंप्लायंस गोल्ड ज्वेलरी और प्रेशियस स्टोन्स के मूवमेंट के रिस्पेक्ट में आने वाली है. कैसे आएगी, किस फॉर्म में आएगी, दैट इज डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर, बट या दैट मीन्स अब इसका मूवमेंट रेगुलेटेड मूवमेंट होगा. जब ये मूवमेंट रेगुलेटेड होगा, दैट मींस इसका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करने की जरूरत होगी व्हेनेवर सम ऑफ दीज आइटम्स आर गोइंग आउट ऑफ द शॉप और द प्रीमाइसेस एंड व्हेन दे आर कमिंग बैक. एंड दैट इज व्हाई फ्रॉम कंप्लायंस पर्सपेक्टिव एक काफी इंपॉर्टेंट चेंज होने वाला है. Then we come to next, which is transportation. All those people who are engaged into transportation, या फिर all those who are taking services of transportation. So there is a change. First, जहां पर भी कोई व्हीकल, गुड्स व्हीकल अगर किराए पर लिया गया है, और अगर वो जो किराए पे लिया गया उसमें द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज ऑल्सो इंक्लूडेड. सो आई हैव टेकन अ व्हीकल ऑन रेंट फ्रॉम समबडी, जहां पर मैंने उनको बोला दैट यू हैव टू ओनली प्रोवाइड मी द फ्यूल, देन इन दैट केस रेट ऑफ टैक्स अप टिल नाउ इट वाज 18%. नाउ इट इज गोइंग टू बी सब्सिक्वेंटली रिड्यूस टू 12%. फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज फ्यूल का कंटेंट काफी यूज होता है किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर, एंड बिकॉज 18% टैक्स था, तो टेक्निकली उसमें हो ये रहा था कि फ्यूल के अमाउंट के ऊपर भी इनडायरेक्टली जीएसटी का इंप्लीकेशन आ रहा था. नाउ विद द रिडक्शन ऑफ रेट, व्हाट गवर्नमेंट इज बेसिकली ट्राइंग टू डू इज कि टोटल अमाउंट जो रेंट का है उसमें से अगर हम फ्यूल का 30-35% मानते हैं, और अगर हम उसको हटा दें तो बाकी बैलेंस पे सरकार 18 लगाना चाहती है. तो ऐसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, इसलिए टोटल अमाउंट के ऊपर गवर्नमेंट वांट्स टू बेसिकली चार्ज 12%. So that is going to be one important change which is going to come in future. ट्रांसपोर्ट बाय रेल और वेसल, उसके रिस्पेक्ट में चेंज हम लोगों को ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा. नाउ एक क्लैरिफिकेशन है जो इश्यू होने वाला है, एंड दैट क्लैरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन एज अ सर्विस रिसिपिएंट आल्सो, क्योंकि हम सब जानते हैं जीटीए के केस में रिवर्स चार्ज में टैक्स लायबिलिटी आती है, वेयर एट टाइम्स वी हैव टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज. सो व्हाट इज दैट थिंग वेयर इन केस ऑफ जीटीए, अगर जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अपनी बिल्टी के ऊपर टैक्स चार्ज करती है, देन दे हैव टू चार्ज टैक्स ईदर एट द रेट ऑफ 5% और 12%. अगर वो 12% चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जिस तरीके से कानून अभी लिखा गया है, the law says that once they start charging 12%, they have to always charge 12%. They can't go back to 5%. वो वापस 5% चार्ज नहीं कर सकते. अब ये वापस 5% चार्ज नहीं कर सकते का इंटरप्रिटेशन अलग अलग लिया जा रहा था कि ये क्या फाइनेंशियल ईयर वाइज लिमिट है, या
एक बार अगर आपने 12 चार्ज कर दिया तो टिल द टाइम दैट एंटिटी इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी उसको 12 ही चार्ज करना है, तो उस पर क्लैरिटी नहीं थी, लोग अपनी अलग अलग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे थे. नाउ इन दिस रिगार्ड देयर इज अ क्लैरिफिकेशन व्हिच इज गोइंग टू बी इशूड कि ये जो 5 और 12% का ऑप्शन है जो ट्रांसपोर्टर को दिया गया है, वो जो अपनी बिल्टी पे चार्ज करेगा, वो ऑप्शन जो है दैट ऑप्शन इज फाइनेंशियल ईयर वाइज. तो एक ट्रांसपोर्टर हर फाइनेंशियल ईयर में तय कर सकता है कि उसको इस साल 12 चार्ज करना है कि 5 चार्ज करना है. हम सब जानते हैं अगर वो 12 चार्ज करता है अपनी बिल्टी के ऊपर, तब इस केस में वो अपने खर्चों का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है. अगर वो अपनी बिल्टी पे 5% चार्ज करेगा तब वो अपने खर्चों का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता है. इन द सेम टाइम रिवर्स चार्ज का ऑप्शन भी है. अगर ट्रांसपोर्टर ये तय करता है कि उसे कोई टैक्स पे नहीं करना और उसके रिसिपिएंट को टैक्स पे करना है, जो उसकी सर्विसेज ले रहे हैं और जो फ्रेट का पेमेंट करने वाले हैं, देन इन दैट केस दैट ऑप्शन विल कंटिन्यू. जो सभी लोग रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेंगे उनको 12 कभी पे नहीं करना, उनको हमेशा 5% ही पे करना है और वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं. सो फ्रॉम ए रिसिपिएंट पर्सपेक्टिव फायदा ये है कि अब आप ट्रांसपोर्टर को कंप्लायंस के लिए बोलते हैं तो यू कैन ऑलवेज टेल हिम कि अब मैं 5% रिवर्स चार्ज में चार्ज पे करूं या आप अपनी बिल्टी पे लगाओ, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस. सो आप 5% की कंप्लायंस करके टैक्स पे कर सकते हो. दैट इज वन थिंग जहां से रिवर्स चार्ज की कंप्लायंस एक रिसिपिएंट कैन कम आउट इन केस ही अंडरस्टैंड्स कि उसको वो कंप्लायंस नहीं करनी है. ओके. देन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के रिस्पेक्ट में भी एक चेंज है. हम सब जानते हैं फास्टैग है जो मैंडेटरी हो गए हैं और टोल प्लाजा पे, और जहां पे किसी के पास व्हीकल पे फास्टैग नहीं होता है तो उससे टोल की डबल वसूली करी जाती है. डिस्प्यूट ये था कि वो जो फास्टैग जहां पर नहीं है और जहां पे एडिशनल टोल लिया जाता है, ये एडिशनल टोल अपने आप में कोई एक सेपरेट सर्विस है या फिर इसमें जो टोल वाली जो रेट है वही रेट इसके ऊपर लगनी चाहिए. बिकॉज एक्चुअली टोल कलेक्शन के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है. ऑल दोज आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय कलेक्शन ऑफ टोल, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, वो जीएसटी मुक्त है. बट ये जो एडिशनल पैसा लिया जा रहा है क्योंकि जो व्हीकल आ रहा है उसमें टोल नहीं है, तो उस पर कुछ जगह विभाग का व्यू था कि उसके ऊपर 18% टैक्स लगना चाहिए. तो उस कारण से जो टोल का खर्चा है बेसिकली इट वाज गेटिंग इंक्रीज्ड. नाउ इन दैट रिगार्ड काउंसिल हैज सेड एक सर्कुलर है जिसके रिस्पेक्ट में इशू करा जाएगा. वह सर्कुलर वो क्लैरिफाई कि जो टोल या एडिशनल टोल फास्टैग नहीं होने के कारण जो रिकवर करा जा रहा है, दोनों टोल के रिस्पेक्ट में सर्विसेज है और जो रेट ऑफ टैक्स टोल पे एप्लीकेबल है वही इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी. तो बिकॉज टोल पे रेट कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए उसके एडिशनल पेमेंट के ऊपर भी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी. सेकेंड इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस, सो आई विल नॉट डिस्कसिंग. थर्ड इज इंपॉर्टेंट. हम सब जानते हैं अगर कोई व्हीकल किराए पर लिया जाता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर पैसेंजर, इफ इट इज टेकन ऑन रेंट, दैट इज लेविएबल टू जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज. उसमें अगर जो रिसिपिएंट है, इफ that is other supplier is other than a body corporate, to a body corporate, if the service is given then it is under reverse charge. Now what was the issue was एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होती है और एक रेंटिंग ऑफ व्हीकल सर्विस होती है. तो डिस्प्यूट ये था कि रिवर्स चार्ज लगता किसके ऊपर है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पे या रेंटिंग पे. वन इज जहां पे मैंने बोला मुझे टैक्सी चाहिए पूरे दिन के लिए, सो दैट्स अ रेंटिंग ऑफ व्हीकल सर्विस जो मैं ले रहा हूँ. और एक है मैंने बोला कि मुझे यहां से दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के लिए आई एम टेलिंग अ पर्सन कि आप मेरा अरेंजमेंट कर दीजिए, दैट्स अ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. सर्कुलर जो इशू करा जाएगा, जो काउंसिल ने रिकमेंड करा है, तो सर्कुलर सेज टाइम बेसिस के ऊपर जब कोई व्हीकल लिया जाता है, व्हेन इट इज टेकन ऑन अ टाइम बेसिस, दैट इज अ सर्विस व्हिच इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज, जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी है. इवन दैट इज आल्सो सब्जेक्ट टू दैट रिसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. तो जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी नहीं है. स्पेसिफिकली वो सारी एंटिटीज या कंपनीज जो व्हीकल किराए पर लेते हैं, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट अगर साल भर का प्लान कर सके कि हाउ डू दे राइट द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ रेंटिंग ऑफ अ व्हीकल सर्विस और इट इज अ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, and accordingly they can determine whether they have to pay the tax or a supplier has to pay the tax. ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज हम सब जानते हैं कि व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट इन जनरल ब्लॉक्ड है. कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज ही हैं जिनको उसका क्रेडिट मिलता है, बट इन जनरल एक मैन्युफैक्चरर को या एक नॉर्मल सर्विस सप्लायर को उसका क्रेडिट नहीं मिलता है. और अगर इसी के ऊपर मुझे रिवर्स चार्ज में टैक्स देना होगा तो बिकम्स में एडिशनल कॉस्ट. So where I have to pay, where I don't have to pay, उसके ऊपर एक सर्कुलर है. टाइम सर्कुलर is going to be there. टाइम बेसिस के ऊपर if there is a live, if I am taking a vehicle, that is probably only covered under reverse charge. You have to wait for the circular, but the press release says accordingly. So it's a good welcome circular.
ऑल दोज पीपल हु आर इनटू हॉस्पिटैलिटी, या फिर आप एज अ सर्विस रिसिपिएंट, आपकी एम्प्लॉय जब होटल्स में अकोमोडेशन का सर्विस लेते हैं, सो हम सब जानते हैं कि एक बजट तय होता है कि आपका जो टीए दैट विल डिपेंड अपॉन व्हाट इज द पर डे एक्सपेंस ऑफ डन इन ए होटल. सो ऑल द बजट होटल जिनका 1,000 रुपए से कम का टैरिफ था, उसके ऊपर आज तक अभी तक जीएसटी नहीं था, वो एग्जेम्प्टेड था. नाउ गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट इज सेइंग कि वहां पे एग्जेम्पशन का कोई मतलब बनता नहीं है, बिकॉज generally all these services are used by those people who can claim credit. Otherwise also होटल को फिर इसका proportionate input tax credit unnecessary reverse करना पड़ता था, so it was a compliance burden. So going forward अब कोई छूट नहीं है. अब होटल 1,000 रुपए से कम का है, 1,000 रुपए से ज्यादा का, इट मेक्स नो डिफरेंस. बस अगर 7,500 से ऊपर का है तो उसकी रेट अलग है. Otherwise all of them are now taxable at the rate of 12%. So it is going to be taxable. All hotels, irrespective their tariff is 500, 600, 700, 900, 1,000, doesn't matter, they have to pay tax. इसका इम्पैक्ट होटल्स पे उतना नहीं है जितना हॉस्टल्स के ऊपर है. वो सभी लोग जो हॉस्टल चला रहे हैं या गेस्ट हाउस चला रहे हैं, और जहां पर वो एक रेजिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं है बट इट्स अ कमर्शियल एक्टिविटी विच दे आर डूइंग, वहां पर अप टिल नाउ एक व्यू ये था कि अगर मैंने किसी को, मान लीजिए किसी को हॉस्टल दिया रहने के, मैंने किसी को रहने के लिए जगह दी एंड आई एम रनिंग अ हॉस्टल, और मेरा महीने का किराया अगर 30,000 रुपए से कम का है हॉस्टल का, विच इज जनरली वेरी हाई, 30,000 रुपए किसी हॉस्टल का किराया नहीं होता है, तो इन दैट केस एक एग्जेम्पशन रुपीज की बात करते थे, अब वो एग्जेम्पशन खत्म हो गया. दिस विल नॉट ओनली इम्पैक्ट दी होटल्स, ये हॉस्टल, होटल, स्टे होम्स, इन सब के ऊपर इसका इम्प्लीकेशन है. ऑल ऑफ देम, इफ नाउ देयर टोटल टर्नओवर क्रॉसेस 20 लाख रुपीज, उनको रजिस्ट्रेशन लेके कंप्लायंस करने की जरूरत है. एज अ सर्विस रिसिपिएंट आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या है? अगर आपका एम्प्लॉय अब होटल्स में या अदरवाइज दिखता है, वो अब उसके ऊपर एडिशनल 12% का बर्डन है. बट एडिशनल 12% के अलावा ये चीज ध्यान रखने की है कि अगर वो दूसरे स्टेट में जाके किसी होटल में रुका हुआ है तो उसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है. ऑल ऑफ अस नो अबाउट इट, एंड दैट इज नाउ दिस 12% में एडिशनली बिकम अ कॉस्ट. टूर ऑपरेटर सर्विस देने वाले अगर कुछ लोग हैं, आई कैन सी वन ऑफ देम देयर, अगर वो किसी फॉरेन नेशनल को टूर ऑपरेटर की सर्विसेज दे रहे हैं, इन दैट केस अब एक क्लैरिफिकेशन है जो इशू करा जाएगा कि अगर वो पार्टली सर्विसेज इंडिया में और पार्टली इंडिया के बाहर है, वो टूर जिस तरीके से प्लान्ड है, तो अगर उसके 50% वैल्यू के ऊपर वो टैक्स पे कर देते हैं, तो बाकी 50% के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी. सो मैक्सिमम इज 50%, सॉरी मिनिमम इज 50%. अगर 50% से ज्यादा पे टैक्स पे करते हैं तो गुड, इररिस्पेक्टिव उसका टूर का पोर्शन इंडिया में कितना था और इंडिया के बाहर कितना था. बट इफ सम पोर्शन इज आउटसाइड इंडिया, तो अगर मैं इंडिया में बैठा हुआ टूर ऑपरेटर हूँ और मान लीजिए मैं एक फॉरेन नेशनल को सर्विस दे रहा हूँ जिसमें से पार्टली टूर इंडिया के बाहर कंडक्ट होना है और पार्टली टूर इंडिया में कंडक्ट होना है, देन इन दैट केस अभी तक लॉ ये कहता था कि पूरे के ऊपर टैक्स लायबिलिटी आएगी. नाउ द क्लैरिफिकेशन वुड प्रोबेबली से कि इसमें से पार्शियल अमाउंट पे वो टैक्स पे कर सकता है, सब्जेक्ट टू सरकार को बेयर मिनिमम टैक्स. नाउ वी कम टू रेंटिंग, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज. ये इम्पैक्ट सिर्फ आपको एज अ बिजनेस ओनर या मे बी एज अ कंप्लायंस पर्सन नहीं करेगा, बट अगर आपने भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है किसी को, विच जनरली सम ऑफ अस जनरली हैव सम सॉर्ट ऑफ ए रेंटल इनकम, या फिर आपकी जो कंपनी के प्रमोटर है या पार्टनर है, उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी उन्होंने किसी को किराए पर दे रखी है, देयर नाउ देयर इज गोइंग टू बी बिग चेंज. एंड द चेंज इज, अभी तक अगर किसी को घर या मकान, जो इसको हम रिहायशी मकान कहते हैं, अगर वो किसी को किराए पर दिया जा रहा था रहने के लिए, उसके ऊपर एग्जेम्पशन था. नाउ उसमें एक स्लाइट चेंज है. द चेंज इज, अगर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस, जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करी जा रही है, तो अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करी जा रही थी, उसके ऊपर एनी विच पे आज तक जीएसटी था. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं, बट जिसको वो प्रॉपर्टी किराए पर दी है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, देन इन दैट केस चाहे उसका यूज रेजिडेंशियल ही क्यों नहीं हो, तब भी उसके ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी. सो इसका इम्पैक्ट कहाँ है? इम्पैक्ट ये, मान लीजिए मेरे पास एक फ्लैट है और वो मैंने फ्लैट किसी कंपनी को किराए पर दिया, और कंपनी ने ये अग्रीमेंट में लिखा है कि वो इस फ्लैट को इस्तेमाल करने वाले हैं अपने एमडी के अकोमोडेशन के लिए. तो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, लेट्स से उसको अपने घर के तौर पे इस्तेमाल करने वाला है, फैमिली इज गोइंग टू स्टे देयर, बट उसके किराए का पेमेंट वो एमडी नहीं करेगा, वो कंपनी करने वाली है, चाहे उसके परक्विजिट्स में ऐड हो जाए, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी. अभी तक वो जीएसटी के बाहर था, एग्जेम्प्टेड था. अब वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगा और उसके ऊपर भी जीएसटी की लाइबिलिटी आती है.
सो नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। हम सब जानते हैं कि 20 लाख की लिमिट काउंट करने के लिए हम एग्जेम्प्टेड टर्नओवर और टैक्सेबल टर्नओवर दोनों को जोड़ते हैं। तो मान लीजिए मैं प्रॉपर्टी जो लोगों को किराए पर देता हूं, द प्रॉपर्टी विच आई एम गिविंग ऑन रेंट टू द पीपल, लेट्स से वो टोटल साल भर में 20-22 लाख रुपए आती है, उसके साथ मेरी कुछ और इनकम भी आती है, मेजॉरिटी ऑफ दैट इज एग्जेम्प्टेड। अब मैंने उसमें से 3 लाख रुपए कुछ ऐसे हैं जो मैं किसी से रिकवर कर रहा हूँ, जो एक कंपनी को मैंने किराए पर दे रखी है, जो उसको एज ए गेस्ट हाउस चला रहे हैं या फिर अपने किसी इंप्लॉय के रहने के लिए चला रहे हैं। इन ऑल दोज केसेस नाउ इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एंड टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। सो दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट कि हम ये चीज का ध्यान रखें कि रेंट अग्रीमेंट किस तरीके से एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। अगर रेंट अग्रीमेंट किसी बिजनेस एंटिटी के साथ है, देयर नाउ इट इज गोइंग टू बी टैक्स लायबिलिटी। रेंट अग्रीमेंट किसी इंडिविजुअल के साथ में जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ध्यान से समझने वाली चीज है, रेंट अग्रीमेंट किसी इंडिविजुअल के साथ में है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, बट वो इस प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल यूज के लिए रखने वाले, अपने बिजनेस यूज के लिए नहीं रखने वाले, देन प्रॉब्ली इन दैट केस एक ऑप्शन हो सकता है कि जीएसटी की लाइबिलिटी ना हो, सब्जेक्ट टू कि रेंट ही स्पेसिफिकली मेंशंस दिस दैट दिस विल नॉट बी यूज्ड फॉर अ बिजनेस एक्टिविटी, but that is still going to be a little debatable issue. So this renting change is going to cause a lot of impact. इसका impact है जो पैन इंडिया बेसिस पे जरूर आने वाला है। इसके अलावा जो जो प्लॉट डेवलपमेंट का काम करते हैं, एंड आई सी दिस इशू, इनफैक्ट कुछ क्लाइंट्स हैं यहाँ पे जो इस इशू को ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो ऑल दोज पीपल हु आर डेवलपिंग प्लॉट्स एंड सेलिंग इट टू दो पीपल एंड दे ओनली सेलिंग डेवलप प्लॉट। और हम जानते हैं कि जीएसटी में सेल ऑफ लैंड जो है वो जीएसटी के बाहर है। द प्रॉब्लम इज जीएसटी के बाहर सेल ऑफ लैंड है, पर विभाग का या रेवेन्यू की अंडरस्टैंडिंग है कि अगर अनडेवलप्ड प्लॉट अगर किसी ने, बिल्डर ने ले रखा है अपने पास में और उसको डेवलप करके उसमें स्ट्रीट लाइट, रोड और सम पार्क जनरेट करके, गैस लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन की फैसिलिटी देके अगर वो प्लॉट ही बेचा जा रहा है आगे, तभी सिर्फ सेल ऑफ लैंड नहीं है, सेल ऑफ लैंड के अलावा कुछ समथिंग एडिशनल इज देयर एंड दैट इज लायबल टू टैक्स। Now in all those cases issues were going on. The good thing is there is a recommendation by the council that they will issue a circular कि जो भी सेल ऑफ लैंड है आफ्टर लेवलिंग, लेइंग डाउन ऑफ ड्रेनेज लाइन एक्सेट्रा, वो सेल ऑफ लैंड ही कहलाएगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो पढ़ के तो ऐसा लगता है कि इशू एसएससी के फेवर में काउंसिल ने तय करके उस पर क्लैरिफिकेशन इशू करने वाले हैं, बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि हमें सर्कुलर का वेट करना चाहिए, सर्कुलर का लैंग्वेज देखना चाहिए कि वो लैंग्वेज में क्या लिखने वाले हैं, कंसिडरेशन किस समय पे मिल रहा है उसके बारे में क्या लिखने वाले हैं, अकॉर्डिंगली वी शुड टेक अ डिसीजन। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, चाहे वो सर्कुलर में कुछ भी लिखे, टैक्स लायबिलिटी कभी भी सेल ऑफ लैंड के ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि लैंड जीएसटी के दायरे के बाहर है। तो चाहे डेवलप प्लॉट की सेल हो, अनडेवलप प्लॉट की सेल हो, पैसा एडवांस में लिया जा रहा है, पैसा बाद में लिया जा रहा है, इन चारों केसेस में टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है। बट वी हैव टू वेट फॉर द सर्कुलर, द सर्कुलर इज ऑन द सेम अंडरस्टैंडिंग और नॉट। एक और चीज जो एक अमेंडमेंट के तौर, सर्कुलर के तौर पे कमेंट करी है काउंसिल ने, विच इज अगेन अ गुड आई वुड से क्लैरिफिकेशन विच विल कम। अभी जो लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड है उसके ऊपर जीएसटी लगता है, बिकॉज हम जानते हैं सेल ऑफ लैंड पे टैक्स नहीं है, बट लीजिंग ऑफ लैंड के ऊपर जीएसटी है। कई बार जो लॉन्ग टर्म लीज होती है विच आर फॉर लाइक 99 years और लाइक 60 years और फॉर 30 years, उन सब में प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस अलग से लिए जाते हैं, वेयर आई एम बेसिकली टेकिंग अ प्लॉट ऑन लीज ऑफ माय चॉइस एट अ स्पेसिफिक प्लेस। तो अगर कॉर्नर प्लॉट है, नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लॉट है, उसमें प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस लिए जाते हैं। देयर द इशू वाज कि उसके ऊपर टैक्स रेट क्या आएगा, टैक्स क्या लगेगा, वेयर दे हैव सेड कि जो लीजिंग के ऊपर रेट ऑफ टैक्स लग रहा है वही प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस पे लगेगा। हो सकता है आप कंस्ट्रक्शन लाइन में या रियल एस्टेट में नहीं हो तो आपको ये लगे इट इज इररिलेवेंट, बट इसका एक इम्पैक्ट ये गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट है जिसको वापस रीइंफोर्स करने की कोशिश करी है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपकी मेन सर्विस या मेन गुड्स के साथ में कोई और चीज दी जा रही है, और जो दूसरी चीज दी जा रही है वो आपकी मेन सर्विस को यूज करने के लिए आपको, और इट विल इंड्यूस द बेटर यूज ऑफ इट, या उसको यूज करने में एज ए एंसिलरी सपोर्ट काम करेगी, तो वो मेन सप्लाई का पार्ट है, और जो टैक्स मेन सप्लाई पे लगना है वो एंसिलरी पे लगेगा। तो ये पीएलसी चार्जेस बेस्ट एग्जांपल है। अगर लैंड की लीजिंग के ऊपर टैक्स है तो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस उसी का पार्ट है, तो जो लीजिंग के ऊपर टैक्स है वही पीएलसी के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। आप इस कॉन्सेप्ट को अपनी अपनी इंडस्ट्री में
wherever you find this issue कि ये क्या rate of tax लगना चाहिए मेरी goods या services पे जो मैं साथ में दे रहा हूँ, you can basically take this there and put it from, look it from their perspective. Okay. Some changes on in other sectors, I will quickly go through them. Power sector में for example solar water heater and solar water system, इस पे अभी 5% का रेट था, going forward is going to be 12%. रिमेंबर, इसके अलावा जो सोलर बेस्ड डिवाइसेस थे या सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम थे, उनके ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने फ्रॉम जनवरी 2022 जो रेट है उसको 5 से बढ़ा के 12 कर दिया था. Solar water heating system and water heaters and systems were covered under 5 only. Now they are also going to increase to 12%. स्पेसिफिकली जो एलईडी लैम्प, लाइट, फिक्चर्स, ये सब चीजें हैं, सर्किट बोर्ड्स, ये 12 में थे, 18 में जाएंगे, प्रोबेबली नॉट ऑफ रेगुलर यूज फॉर अस. वाटर पंप्स, नाउ फॉर ऑल दोस पीपल हु आर इनटू वाटर पंप्स, चाहे वो सोलर है अदरवाइज, बट इट बेसिकली पावर ड्रिवन वाटर पंप जितने भी है, इररिस्पेक्टिव फ्रॉम व्हाटएवर पावर दे आर गोइंग टू ओवर, if they were under 12%, now they will come under 18%. So all these water pumps also now set to get a little costlier. And again, वो सब लोग यहाँ पर जिनको मैं जानता हूँ who are engaged as contractors है, जो गवर्नमेंट के लिए जल जीवन मिशन जैसे एक प्रोग्राम, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ह्यूज प्रोग्राम है, उसमें जहाँ पे they are working as contractors and basically putting those water pumps there. Probably all the procurements which they will do after 18th of July 2022, वहां पर tax liability 12 से it is going to come to at 18%. One more very important change and is in respect of foods and grains, और ये I think आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, सब जगह इसके बारे में जरूर चर्चा है. मैं शुरू के 3 पे तो बात नहीं करूंगा, पर चौथे पे जरूर बात करूंगा. That is, अभी तक ब्रांडेड जो गुड्स थे, फूड आइटम्स थे, जिनको एक कंटेनर पैक में दिया जाता था, सिर्फ उनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी थी, और अनब्रांडेड जो थे उनके ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं थी. अब क्या ब्रांड है उसके ऊपर डिस्प्यूट था, जिसको गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करने की बेसिकली कोशिश करी कि जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रांड. तो कई बार आप अगर बेसिक आइटम देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आटा है, दाल है, इन सब केसेस में जो मैन्युफैक्चरर है वो 2 तरीके से बनाता है, एक ब्रांडेड बनाता है, एक नॉन ब्रांडेड बनाता है. सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एवरीथिंग इज सेम, बट वन पैकेजिंग विल हैव नो नेम, नथिंग, प्लेन पैकेट, और जो दिया जाता है व्हिच इज जनरली कॉल्ड एज अनब्रांडेड. ब्रांडेड इज ऑल दोस जिसके ऊपर एक ब्रांड नेम होगा, नाम से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसका एक बाजार में नाम होगा, सो यू कैन गो एंड यू कैन से मुझे XYZ ब्रांड की ये पर्टिकुलर चीज चाहिए. Whereas the other is you do not have a brand, you know the person who sells it, you go there and you take it, bring it home. Unbranded पे अभी तक टैक्स नहीं था. Now going forward, all these unbranded will also become taxable. So meaning thereby, अगर कोई रिटेल सेल पैक में दिया जा रहा है जो पहले से प्री पैक्ड और प्री लेबल्ड है, और प्री पैक्ड और प्री लेबल्ड को लीगल और मेट्रोलॉजी एक्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, बेसिकली विच कम्स इन स्पेसिफाइड क्वांटिटीज विच ऑल द डिटेल्स मेंशन्ड इन इट. Now, even if they are unbranded, किसी बिना ब्रांड नेम के साथ दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लाइबिलिटी आने वाली है. सो सम ऑफ आवर फ्रेंड्स हियर जो दूध, छाछ, लस्सी, ये सब चीजें बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, देते हैं, जो अभी तक वो ब्रांडेड दे रहे थे उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कुछ केसेस में थी. अब वो जो अनब्रांडेड देने वाले हैं उसके ऊपर नाउ इट इज गोइंग टू बी अ टैक्स लाइबिलिटी. सो दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. इट इज गोइंग टू हैव चेंज, not as a supplier only but as a recipient के तौर पे भी it is going to has impact on us. थोड़ी चीजें जरूर इससे महंगी होंगी, इसलिए महंगी होंगी क्योंकि जितने भी सप्लायर्स थे उनका कैपिटल गुड्स का जो क्रेडिट था सिर्फ एक वही क्रेडिट था जो भी प्रोपोर्शनेटली रिवर्स हो रहा था इस एग्जेम्पशन के कारण. अदरवाइज ये सब चीजें बनाने में ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट इनवर्ड साइड पे होता नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल मेजोरिटी सारा एग्जेम्प्टेड है. Now because it is going to be taxable करने के पीछे का गवर्नमेंट का पर्पस ये, क्योंकि जो अभी 2 एग्जेम्पशन चल रहा था अनब्रांडेड के लिए, उस कारण से देयर वाज लॉट ऑफ एम्बिग्विटी. अलग अलग बिजनेस प्रैक्टिसेस डेवलप हुई थी, और रेवेन्यू ने अलग अलग जगह पर इंटेलिजेंस बेस्ड इंक्वायरीज करके पता करने की कोशिश करी कि एक्चुअली में अनब्रांडेड बिक रहा है या ब्रांडेड को अनब्रांडेड के नाम पे दिया जा रहा है. सो देयर व्हाट बेसिकली दे हैव सेड इज एटलीस्ट हम एक क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं कि वी वांट टू ट्रीट बोथ देम एट पार. चीजें जरूर महंगी होंगी, but at least tax perspective it is going to be clear. Second, which is important again, we have a lot of warehouses around Rajasthan. Some of us people who are engaged in this activity. अब अभी तक ये था कि कुछ स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट्स के स्टोरेज के ऊपर टैक्स नहीं था, तो जो स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग की सर्विसेज दे रहे थे उनको प्रोडक्ट वाइज देखना होता था
कि हाउ आर दे बेसिकली गोइंग टू डू इट। तो एक स्पेस ऐसी थी जहां पर कुछ ऐसे गुड्स रखे जा रहे थे जिनके स्टोरेज के ऊपर टैक्स था, और कुछ स्पेस ऐसी थी जहां पर वो गुड्स रखे जा रहे थे जिसके ऊपर टैक्स नहीं था। नाउ व्हाट बेसिकली द रिकमेंडेशन इज कि कुछ स्पेसिफिक गुड्स जिनके ऊपर अदरवाइज टैक्स लाइबिलिटी तो है, जैसे नट्स, स्पाइसेस, खोपरा, जैगरी, कॉटन, इन सबको बेचने पे टैक्स लाइबिलिटी तो है, बट जो इनकी स्टोरेज सर्विसेज दे रहे थे वो आज तक एग्जेम्प्टेड थे, वो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग का जो पैसा ले रहे थे। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, पीछे की जो चेन है, जब उसके आउटवर्ड के ऊपर टैक्स है, तो जो ये स्टोरेज वेयर हाउसिंग की सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स लगाया है, सो दैट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आउटपुट के अगेंस्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। So this is going to have a change. Probably I would say it's a welcome change. Welcome change in a sense because कारण से confusion बहुत सारा था. Input tax credit जो लोग warehousing की services देते थे उनका proportionately reverse होता था. So in that sense they'll be happy now at least कि वो इस tax की recovery अपने recipient से कर सकते हैं और अपनी input को पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं. Okay. लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री, फुटवेयर के ऊपर रेट चेंज की बात थी, बट ऐसी कोई भी चीज जीएसटी काउंसिल की मिनट्स में नहीं है. इनफैक्ट टू माय बेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच आई हैव, काउंसिल की मिनट्स के अंदर भी इसके ऊपर चर्चा नहीं थी कि फुटवेयर के ऊपर रेट चेंज 12 से 18 होनी है. तो दैट हैज नॉट हैपेंड. बट या जो लोग जॉब वर्क करते हैं फुटवेयर के रिस्पेक्ट में, वो जॉब वर्क के ऊपर रेट आज अभी तक 5% थी. Now that is going to set to increase from 5% to 12%. तो वो जरूर 12% के दायरे में अब आ जाएगी, 5% से 12% में. फुटवेयर में हम सब जानते हैं, अभी जनवरी में पिछले साल जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, where in November a decision was taken that certain footwears of beyond a certain price, उसका जो रेट है उसको बढ़ा के 12% किया जाएगा. So that has already been done. अब आप इनवर्ड साइड पे देखेंगे तो इनपुट सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में वो जो 5% की सर्विसेज थी जॉब वर्क की, जो लोग बाहर जॉब वर्कर के ऊपर डिपेंडेंट थे सर्विसेज देने के लिए, वो 12% में आ गया है. इन हाउस जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके ऊपर उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज उनका तो लेबर है जो रोल के ऊपर है, एंड वहां पर ये जो रेट चेंज है उसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं आने वाला है. ओके. All those who are into पब्लिशिंग द सोवेनियर्स, सोवेनियर के अंदर एक डिस्प्यूट था कि वहां पर जो एडवर्टाइजिंग करी जाती है उस पे रेट ऑफ टैक्स क्या होगा. तो अलग अलग डिस्प्यूट्स थे उसके ऊपर. नाउ बेसिकली गवर्नमेंट इज कमिंग आउट विद क्लैरिफिकेशन बाय सेइंग कि अगर कोई स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट किसी सोवेनियर में दिया गया है, काइंड ऑफ अ डायरेक्टरी वेयर पीपल राइट विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, दे आर टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5%. तो वो 5% की रेट से दे आर टैक्सेबल इन दिस रिगार्ड. ओके. Now these are certain rate changes. Again, these rate changes are not applicable today. अगर आपकी कोई बिलिंग है जो आउटस्टैंडिंग है, आप एक सर्विस सप्लायर है, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, एंड यू नो दैट रेट इज गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम 18th of July 2022, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस बेसिकली राइट नाउ टू लुक एट इट. जितना आपका वर्क डन ऑलरेडी हो चुका है या 18 तक होने वाला है उसकी बिलिंग कर दिए जाए 18 के पहले, so that at least in all those cases the tax liability is going to be only 12% but not 18%, subject to कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को वो सर्विसेज दी जा रही हैं. Apart from that, for all other people whose rate are going to change, अगर सप्लायर पर्सपेक्टिव से भी देखें, you can go back to the supplier, tell the supplier what is the rate change which you are aware of, look at it. अगर रेट कम हो रही है, you can ask for reduction in the price at which they are sending goods, giving goods to you. और अगर रेट इंक्रीज होने वाली है, then in that case you can always tell them that they should keep it constant because उनको input tax credit का benefit भी मिलने वाला है. Now we come to another issue which is a very important issue जो काउंसिल ने टेकअप किया है, और इनफैक्ट काउंसिल ने दो तरफा काम किया है. एक तरफ जो आपने रेट इंक्रीज के बारे में देखा, एट द सेम टाइम दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे जहां जहां वो रेट इंक्रीज नहीं कर सकते थे, स्टिल किसी इंडस्ट्री जहां पर क्रेडिट बहुत सारी अक्यूमुलेटेड है एंड देयर वाज अ प्रॉब्लम इन द फॉर्मूला, वो फॉर्मूले के अंदर प्रॉब्लम थी रिफंड लेने के लिए, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करी गई है. कैसे कोशिश करी है? सो आई एम श्योर हम सबको पता है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था लास्ट ईयर वीकेसी फूडस्टेप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रिस्पेक्ट में, जिस जजमेंट में ये कहा गया था कि वे सब लोग जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर रिफंड लेना चाहते हैं उनको ये चीज समझनी होगी कि वो इनपुट सर्विसेज का रिफंड नहीं ले सकते. और इसको लेके काफी लिटिगेशन हुआ, लोगों ने अपने अपने इंटरप्रिटेशन दिए, बट फाइनली सुप्रीम कोर्ट का वर्ड विच इज द फाइनल वर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने इस लिटिगेशन को विभाग के फेवर में सेटल किया और उन्हें बोला इनपुट सर्विसेज का जो रिफंड है वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में नहीं क्लेम किया जा सकता बिकॉज कानून उस तरीके से लिखा हुआ है.
पर उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज बोली, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो एग्जिस्टिंग फॉर्मूला है रिफंड लेने का, उस फॉर्मूले में प्रॉब्लम है। और उस फॉर्मूले में प्रॉब्लम ये है कि जो रिफंड कैलकुलेट होता है उसमें इनपुट सर्विसेज का इंपैक्ट नहीं लिया जाता। सो नाउ प्रोबेबली ये एक चीज है जो थोड़ी समझने की है कि जीएसटी काउंसिल ने क्या किया है। आप देखेंगे तो आपके सामने ये फॉर्मूला है रिफंड लेने का इन्वर्टेड ड्यूटी के केस में। हम रिफंड कैसे लेते हैं, हमें पहले ये देखना होता है कि मेरा प्रोडक्ट के ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स है, क्या मेरे इनवर्ट साइड पे मैं जो भी माल खरीद रहा हूँ, क्या मैं जो भी माल खरीद रहा हूँ चाहे वो रॉ मटेरियल या कंज्यूमेबल, उसमें से कोई भी आइटम ऐसा है क्या जिसकी रेट ऑफ टैक्स मेरे आउटवर्ड की रेट ऑफ टैक्स से ज्यादा है। क्वांटम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या रेट ऑफ टैक्स मेरी किसी भी इनवर्ड के आइटम की जो मैं खरीद रहा हूँ उसकी रेट ज्यादा है मेरे आउटपुट से। अगर ज्यादा है तो मुझे इस फॉर्मूले के अंदर फिगर्स को डाल के देखना होता है कि क्या मैं रिफंड लेने के लिए एलिजिबल हूं या नहीं। फॉर्मूला ये कहता है कि मेरा टोटल टर्नओवर क्या है, उस टोटल टर्नओवर में से मेरा कितना टर्नओवर ऐसा है जो लोअर रेट का है, जिसके ऊपर मैं कम रेट ऑफ टैक्स पे करता हूँ, जिसको हम कहते हैं इन्वर्टेड रेट, और मेरे इस महीने की इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। वो करने के बाद जो फिगर आता है उसमें से इस महीने मैंने सरकार को कितना आउटपुट के ऊपर टैक्स दिया है उसको मैं माइनस करता हूँ, और जो भी फिगर मेरे पास में बचता है उस फिगर का मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब हम रिफंड कैलकुलेट करने जाते हैं तो हमारे न्यूमरेटर में जो नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है इसमें हम सिर्फ इनपुट्स का फिगर लेते हैं, इनपुट सर्विसेज का फिगर नहीं लेते हैं। नाउ अब इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम ये थी कि जब हम रिफंड लेने जाते हैं तो वहां पर तो नेट आईटीसी में सिर्फ इनपुट्स होता है, वेरएस जब हम टैक्स माइनस करते हैं, जो टैक्स मुझे पे करना है गवर्नमेंट को, वो मैं पूरा टैक्स माइनस करता हूँ, टोटल टैक्स व्हिच आई एम पेइंग ऑन माय आउटपुट सप्लाई। टैक्स में इनपुट से भी पे करता हूँ, इनपुट सर्विसेज से भी पे करता हूँ, जो मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया। तो मेरा सेल के ऊपर जो टैक्स है वो तो मैं दोनों तरीके से जितनी भी मेरी क्रेडिट है उससे सारा मैं पे करता हूँ। बट जब मैं रिफंड कैलकुलेट करता हूँ तो मेरी नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट में सिर्फ माल की क्रेडिट होती है, सर्विसेज की क्रेडिट नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया फॉर्मूला तो ठीक है, होगा तो ऐसे ही, आपको इनपुट सर्विसेज का रिफंड तो नहीं मिलेगा। बट उन्होंने बोला ये जो टैक्स पेएबल माइनस हो रहा है इसको थोड़ा रैशनलाइज करने की जरूरत है, इसको सही करने की जरूरत है। और इसी चीज के ऊपर काउंसिल ने काम किया है, और काउंसिल ने रिकमेंडेशन दिया है कि इस फॉर्मूले के अंदर बदलाव होना चाहिए। और फॉर्मूले में बदलाव ऐसे होना चाहिए कि जो आउटपुट टैक्स यहाँ पे माइनस किया जा रहा है इन्वर्टेड टर्नओवर के ऊपर, जो टैक्स पेबल और इन्वर्टेड टर्नओवर है, उसके अंदर प्रोपोर्शनेट अमाउंट जितना हमने इनपुट सर्विसेज को इस्तेमाल करके टैक्स पे करा है उसको और घटा देना चाहिए। मीनिंग देयर बाय इस आउटपुट टैक्स की फिगर को कम कर देना चाहिए। जैसे ही आउटपुट टैक्स का फिगर कम होगा मेरा रिफंड का फिगर बढ़ जाएगा। तो सरकार का पर्पस बेसिकली अमेंडमेंट लाने का ये है कि आप इनपुट सर्विसेज के क्रेडिट को तो इस्तेमाल करके टैक्स पे करिए, और इनपुट्स के क्रेडिट को आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, सब्जेक्ट तो आप इस फॉर्मूले के अंदर फिट बैठ रहे हो। इस इंटेंशन के साथ में फॉर्मूले में अमेंडमेंट प्रपोज है। अमेंडमेंट मोस्टली विल कम इन नेक्स्ट 15-20 डेज। तो सजेशन है वे सब लोग जो इन्वर्टेड ड्यूटी के अंदर रिफंड फाइल करते हैं, अगर वो रुक सके तो वो रिफंड अभी फाइल ना करें, वेट फॉर द चेंज इन द फॉर्मूला, वॉट एवर चेंजेस कम इन द फॉर्मूला, इफ इट्स अ फेवरेबल चेंज विच कम्स अप and which looks like it is going to be a favorable change, then maybe they can file the refund claim जो भी pending उनके refund claim है, and their amount for claiming the refund would increase। जो एक और चेंज है, बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है, यूजफुल चेंज है, वे सभी लोग जिन्होंने आज तक रिफंड फाइल कर रखे हैं इन्वर्टेड ड्यूटी के अंदर और उनके रिफंड उनको सैंक्शन हो गए, सैंक्शन होने के बाद उनको एक नोटिस आया कि आपको तो हमने गलती से इनपुट सर्विसेज का रिफंड दे दिया जो हमें नहीं देना चाहिए था, या किसी कारणवश आपको रिफंड का पैसा हमने ज्यादा दे दिया, आप हमें वापस दीजिए। हमने एनालाइज करके समझ में आया कि हाँ हमको रिफंड ज्यादा मिल गया, हमें नहीं मिलना चाहिए था, हमने सरकार को वो रिफंड का पैसा ब्याज के साथ में वापस लौटा दिया। अब नोटिस में ये नहीं बोला गया कि मुझे इनपुट क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए था, नोटिस में ये बोला गया कि मुझे रिफंड नहीं मिलना चाहिए था। तो हमने सरकार को जाके वापस बोला कि मुझे रिफंड तो ठीक है आपने मुझसे वापस ले लिया, आप मुझे वो इनपुट का वापस तो दीजिए जो मेरे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में आनी चाहिए। वहां पर अफसर ने ये बोला कि मेरे पास कोई तरीका नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी मैकेनिज्म, हाउ कैन आई गिव बैक दिस अमाउंट टू यू, मैं आपको पैसा वापस कैसे दे सकता हूँ। And there now, because there was no proposal, there was no manner in which the rule was written, now there is a change proposed in the rule. The change in the rule says कि जहां जहां पे भी आपने रिफंड का पैसा वापस दे दिया गया है और आपको पैसा इनपुट टैक्स क्रेडिट में मिलना चाहिए था, तो वहां पर अफसर एक फॉर्म जनरेट करेंगे जिसका नाम है PMT 03A,
और PMT03A के बेसिस पे वो पैसा आपको वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर। सो ये काफी बड़ा चेंज है, यूजफुल चेंज है। वो सब लोग जिनके इनपुट के क्लेम तो वैलिड थे बट रिफंड गलत थे, वो अगर अपना रिफंड वापस चुका देते हैं तो सरकार उनका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो पैसा वापस डाल सकती है। नेक्स्ट चेंज विच इज ऑल्सो गुड क्लैरिफिकेशन, वो सब लोग जो अभी तक एक्सपोर्टर्स को माल दे रहे थे और एक्सपोर्टर्स को 0.1% पे गुड्स दे रहे थे, जिसको हम कहते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर को गुड्स देना एट अ कंसेशनल रेट, उन सबके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट इकट्ठा हो रहा था बिकॉज वो सप्लाई तो कर रहे हैं 0.1% पे और परचेज कर रहे हैं एट फुल रेट। उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन वुड बी गिवन, दैट्स व्हाट काउंसिल हैज रिकमेंडेड। क्लैरिफिकेशन मोस्टली विल कम कि वो सब लोग इन्वर्टेड ड्यूटी में कवर होते हैं और रिफंड क्लेम कर सकते हैं। सो वी हैव टू वेट फॉर द क्लैरिफिकेशन, but it is a good change which is going to come, good clarification। इसके बेसिस पे वो सब लोग अपना रिफंड गोइंग फॉरवर्ड क्लेम कर पाएंगे। ये इन्वर्टेड ड्यूटी के बाद ऑल दोस पीपल और इनटू एक्सपोर्ट्स, जो एक्सपोर्ट करते हैं और रिफंड क्लेम करते हैं, उनके रिस्पेक्ट में कुछ चेंजेस हैं जो प्रपोज्ड हैं। दे आर ऑल्सो रेलेवेंट चेंजेस। पहली चीज आप सब ने सुना होगा, एक रिस्की एक्सपोर्टर करके कॉन्सेप्ट है जहां पर कुछ पैरामीटर्स के ऊपर सरकार की दो एजेंसी है जिनका नाम है DGRAM और RMCC। ये दोनों एक रिस्क मॉनिटरिंग और टैक्स रिस्क एक्सपोजर को आइडेंटिफाई करते हैं एंड आइडेंटिफाई करके दे डिटरमाइन वेदर देयर वाज एनी एक्सपोर्टर जिन्होंने गलत क्लेम रिफंड लिया, फ्रॉडुलेंट रिफंड लिया, या फिर उनके ऊपर डाउट है कि वो एक्सपोर्टर जो रिफंड क्लेम ले रहे हैं वो ज्यादा तो नहीं है, और वो एक असेसी को एक रिस्की एक्सपोर्टर की कैटेगरी में डालते हैं ड्यू टू मल्टीपल रीजन। उसमें से कुछ रीजन सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। नाउ वंस दे पुट देम इनटू दिस कैटेगरी, व्हाट हैपेंस इज वे सब लोग जो IGST लगा के ऑटोमेटिक रूप से एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पर उनका रिफंड रुक जाता है और रिफंड पोर्ट के थ्रू नहीं आता है। एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज बिकॉज वो रिफंड इतने पुराने हो जाते हैं एंड देन देयर इज नो मैनर इन विच कि आप अगर एक्सपोर्ट मान लीजिए जयपुर में बैठ के कर रहे हैं और आपका जो एक्सपोर्ट है वो मुंडला पोर्ट पे या नावाशिवा पोर्ट पे है, बिकॉज आप फिजिकली वहां पे नहीं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट। नाउ इट हैज बीन प्रपोज्ड बाय द काउंसिल कि जितने भी रिस्की एक्सपोर्टर्स की कैटेगरी में लोगों को डाला गया और उनके रिफंड रुके हुए हैं, उन सब केसेस में एक अमेंडमेंट करा जाएगा और एक सिस्टम जनरेट करेगा रिफंड एप्लीकेशन GST पोर्टल पे जिसका नाम होगा RFD1। जिन भी लोगों ने IGST लगा के एक्सपोर्ट किया और वो IGST का पैसा रुका हुआ है, उनके पास तो नहीं आया है अभी तक, what their system what will do is कि एक रिफंड एप्लीकेशन आपके GST ऑफिसर जो आपके सिटी में आपके जुरिडिक्शन में GST ऑफिसर है उनके पोर्टल के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी। he will look at the application, he will look at your status, if you are found present तो आपको रिफंड आपके GST ऑफिसर से आएगा और आपको पोर्ट से रिफंड नहीं आएगा। सो इट इज काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म व्हिच विल सर्व द पर्पस, दोनों के लिए पर्पस सर्व करेगा। डिपार्टमेंट ये इंश्योर कर सकता है कि आप प्रेजेंट हैं और जो रिस्की एक्सपोर्टर का टैग आपके ऊपर लगा था उसमें जो भी कंडीशंस थी उसको देख के सेटिस्फाई कर सकते हैं, और आपका जो रिफंड रुका हुआ है पोर्ट्स के ऊपर जिसका अभी तक यू डिड नॉट हैव एनी मैनर कि वो रिफंड कैसे ले सकते हैं, देयर यू कैन फाइंड द आंसर और आप ये RFD01 जो सिस्टम जनरेटेड है आप उसका रिफंड लेके आ पाएंगे। So modalities will come, but it's a good change which is going to come। आपके जितने भी पुराने रिफंड पेंडिंग्स हैं पोर्ट्स के ऊपर जो अभी तक रिफंड नहीं आए हैं फॉर whatever reason, in that regard you can prepare a list, look at when this change will come and accordingly you may act। आप अपने कस्टम्स पोर्ट को एक चिट्ठी लिख सकते हैं कि इसको रूल 96 के तहत आपके जुरिडिक्शनल ऑफिसर के पास शिफ्ट कर दिया जाए। One more change which is there, very good change। कुछ ऐसे असेसी हैं जिन्होंने इंपोर्ट करा है बिना IGST पे करे हुए एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर, या वो ऐसे लोग जिन्होंने EOU से माल खरीदा बिना टैक्स पे करे हुए, या वे सब लोग जिन्होंने 0.1% के अंदर गुड्स खरीदे और वो इन सब गुड्स को एक्सपोर्ट करा IGST लगा के ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज कि कानून में इस चीज का रिस्ट्रिक्शन है, और मे बी बिकॉज जिस तरीके से कानून में अमेंडमेंट आया वो अमेंडमेंट वाज नॉट नोन। और अब सब जगहों पर विभाग का ये कहना है कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं बिना ड्यूटी पे करे हुए, या आप ऐसा माल खरीदते हैं जिसपे आपने 0.1% का ही टैक्स पे कर रखा है, तो आप IGST लगाकर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने IGST लगाकर एक्सपोर्ट करा है तो वो आप जितना भी आपका रिफंड आपको मिला है IGST वाला ऑटोमेटिक रूप से, वो आपको सरकार को वापस देने की जरूरत है। नाउ अभी तक डिस्प्यूट ये था कि अगर वो रिफंड का पैसा सरकार को वापस दे दिया तो हम एज एन एक्सपोर्टर वो सरकार से वापस पैसा क्लेम कैसे करेंगे। हमने सिर्फ रिफंड एक्सपोर्ट गलत तरीके से करा, पर हम हमारे पैसे के लिए हम एलिजिबल थे रिफंड लेने के लिए।
नाउ देयर इज अ चेंज व्हिच इज प्रपोज्ड, दैट इज आपको सरकार को आईजीएसटी का पैसा वापस दीजिए ब्याज के साथ में, wherever is applicable. Then system, your officer, GST officer will generate a form called PMT 03A, और वो रिफंड का पैसा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वापस डाल दिया जाएगा. सो काइंड ऑफ आप अपने कैश को वापस क्रेडिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसमें जो भी इंटरेस्ट का इम्प्लीकेशन आता है, दैट इंटरेस्ट इम्प्लीकेशन नीड्स टू बी borne. So it's a good change. It may not be the correct understanding as per the law, but at least इससे solution ये मिलता है that all those people जिन्होंने गलती से ऐसा एक्सपोर्ट कर दिया था, now they will be able to basically go through this, they will be able to come out of it, और वो अपने रिफंड के पैसे को वापस अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लाके आगे they can plan how they have to claim the refund. Then वो सब लोग जो अभी तक इंपोर्ट कर रहे थे एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर, और उनको आईजीएसटी का जो छूट मिला हुआ था इंपोर्ट के ऊपर, गोइंग फॉरवर्ड वो छूट उनके पास में है. वो सब लोग जो एग्जेम्पशन के तहत ईओयू से खरीद रहे थे, वो गोइंग फॉरवर्ड उनके पास में छूट रहेगा. वो सब लोग जो ईपीसीजी स्कीम के अंदर कैपिटल गुड्स लेके आ रहे थे, उन सब के पास में वो छूट रहेगा. एंड दे डोंट हैव टू, बेसिकली एग्जेम्पशन था जिसकी एक टाइम लिमिट थी सितंबर तक की, वो सितंबर की टाइम लिमिट को गवर्नमेंट और कुछ समय के लिए बढ़ाने वाली है. ओके, I think I will not go into this. Yeah, this is again one more very important change. काफी यूजफुल चेंज है, काफी हेल्पफुल एक्सपोर्टर्स के लिए. वो सभी लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं, दे आर अवेयर अबाउट दिस, कि जब वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको कुछ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलते हैं. पहले MEIS SCIS मिलता था, अभी वो बंद हो गया, उसकी जगह रोटैप है. सो रोटैप मिलता है, बट ऑल दी स्क्रिप्ट्स आर फ्रीली ट्रेडेबल, क्योंकि आप इन स्क्रिप्ट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी इंपोर्ट की ड्यूटी को कम कर सकते हैं या पे ना करें. वो सब लोग जिनकी काम नहीं आती, दे सेल इट इन द मार्केट एट सम डिस्काउंट, वो बाजार में उसको बेचते हैं. इसको बेचना जीएसटी में गुड्स माना जाता है, और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट बिकॉज वो एग्जेम्प्टेड है, जीएसटी कानून ये कहता है कि अगर आप कोई टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड सप्लाई साथ में कर रहे हैं, तो आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत है. नाउ द प्रॉब्लम वाज, हर एक्सपोर्टर को ये समझाने में विभाग को तकलीफ आ रही थी कि ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स को बेचने के लिए मेरी कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट इस्तेमाल नहीं होती है. I do not use any input tax credit, क्योंकि इसको बेचने के लिए I have to just make a phone call to my broker, और ब्रोकर ही अपने आप बायर ढूंढ के लेके आता है, and I just sell it. I don't do any other activity. बट डिपार्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग अलग थी. उनका ही मानना था, आप जितना भी माल मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं, उसकी जितनी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो इस टर्नओवर के रेशियो में प्रोपोर्शनेटली रिवर्स होनी चाहिए. काउंसिल ने इस चीज को समझा, और उसके बाद नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू डू, वो एक रूल के अंदर बदलाव लेके आने वाले हैं, जहां वो रूल में बदलाव में ये लिखने वाले हैं कि MEIS क्रेडिट्स, SCIS क्रेडिट्स, रोटैप या कोई भी और ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स को अगर किसी एक्सपोर्टर ने बेचा है, तो उसके अगेंस्ट में उन्हें कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है. नाउ इट्स अ गुड वेलकम चेंज. ये जो चेंज है, ये कानून में बदलाव के थ्रू आएगा, रूल्स के अंदर बदलाव के थ्रू. तो एक सवाल ये जरूर उठ सकता है कि अगर ये रूल में बदलाव है, तो ये तो प्रोस्पेक्टिव होगा, आने वाले समय के लिए एप्लीकेबल होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा. बट एक लीगल अंडरस्टैंडिंग है, whenever a change comes which comes by way of an explanation, अगर कोई चीज एक्सप्लेनेशन के तौर पे ऐड करी जाती है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि वो हमेशा से थी, इट इज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, वो इट वाज ऑलरेडी एप्लीकेबल. सो ये पुराने पीरियड्स के जो लोगों के लिटिगेशन चल रहे हैं, उनको उसमें भी ये मदद करेगा, और गोइंग फॉरवर्ड इन सब लोगों को अब जो ड्यूटी क्रेडिट्स के बेचेंगे, उसके अगेंस्ट में कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है. ओके, लास्ट टू चेंजेस और प्रपोजल्स विच आर इंपॉर्टेंट. एक है जो कोविड का टाइम पीरियड था, दैट इज फ्रॉम दिस 1st of March 2020 टिल 28th of February 2022. वो समय जब सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पर समय सीमा बढ़ाई, अपील फाइल करने के लिए, रिप्लाईज फाइल करने के लिए, सब चीजों के लिए. उसमें एक डिस्प्यूट था कि इस दौरान जितने भी रिफंड क्लेम फाइल हुए हैं, तो हम जानते हैं रिफंड क्लेम फाइल करने की एक समय सीमा होती है विच इज 2 years फ्रॉम रेलेवेंट डेट. और अगर कोई रिफंड क्लेम इस पीरियड में दौरान फाइल हुए हैं और वो 2 साल के टाइम लिमिट के बियॉन्ड है, तो क्या वो रिफंड टाइम बार्ड हुए. तो विभाग ने कई जगह इसकी शो कॉज नोटिस इशू करे. उसके ऊपर काउंसिल ने बोला दैट दे विल कम आउट विद अ प्रॉपर सर्कुलर टू से जितने भी रिफंड क्लेम इस पीरियड के दौरान फाइल हुए हैं, और अगर वो 2 साल की समय सीमा को ब्रीच कर रहे हैं, और वो 2 साल की समय सीमा इस पीरियड के दौरान फॉल कर रही थी, देन इन दैट केस वो रिफंड क्लेम वैलिड है और उन्हें टाइम बार्ड नहीं माना जाएगा. तो ये काफी अच्छा चेंज है.
वो जितने भी रिफंड क्लेम लोगों ने इस पीरियड के दौरान फाइल करे, जहां पे अफसर इस बात को लेकर परेशान कर रहे थे कि आपका रिफंड डिलेड है, they'll be able to claim benefit of this particular change when it will come. बट एक इसी के साथ नुकसानदायक चीज और है जिसका काउंसिल ने दे आर गोइंग टू ब्रिंग अ चेंज इन द लॉ. अभी हम सब जानते हैं, हर कोई ये पूछता है कि 17-18 के असेसमेंट चल रहे हैं, ऑडिट चल रही है, ये इसकी समय सीमा क्या है, विभाग कब तक ये चीज कर सकता है. और इसका कानूनन जवाब ये था कि हमने जो एनुअल रिटर्न दाखिल करा उसके 3 साल के अंदर अंदर विभाग इन सब के ऑर्डर पारित कर सकता है, इनके असेसमेंट क्लोज करके दे कैन क्रिएट अ डिमांड. नाउ इन दिस काउंसिल मीटिंग व्हाट दे हैव अग्रीड टू इज कि 17-18 फाइनेंशियल ईयर की जो 3 साल की टाइम लिमिट थी, which was basically set to getting expire in January 2022. In all those cases, government ने उसका time limit बढ़ा के they have said now the time limit for basically passing the order for 17-18 is 30th of September 2023. तो जहां पर डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आपने जानबूझ के टैक्स चोरी नहीं करी है, आपका इंटेंशन टैक्स चोरी का नहीं था, पर आपने फिर भी सरकार को टैक्स कम जमा कराया, उन सब असेसमेंट्स के ऑर्डर पास करने की जो डेट थी दैट वाज जनवरी 22. नाउ इट इज गोइंग टू बी, इट हैज बीन इंक्रीज और इट विल बी इंक्रीज टू 30th of September 2023. जहां पर विभाग ये कह रहा है कि आपने जानबूझ के टैक्स चोरी करी है और आपका इंटेंशन टैक्स चोरी का था और इसलिए आपने जमा नहीं कराया टैक्स, जिसको हम सेक्शन 74 कहते हैं, वहां पर ऑलरेडी सरकार के पास में 2 साल की एक्स्ट्रा टाइम लिमिट है. दे ऑलरेडी हैव अ टाइम अप टिल 2024. सो their time is January 24 and for 73 period it is 30th of September 2023. कुछ क्लैरिफिकेशन है which government is going to basically issue. मैं सब पे तो नहीं जाऊंगा, बट एक इशू है इसमें जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, because I see lot of people who file returns who are attending this. That is, हम GSTR 3B में 2 ऐसे एक स्पेसिफिक कॉलम है जिसमें डिटेल हम फिल नहीं करते हैं, एंड वो इसलिए फिल नहीं करते बिकॉज उसका कोई रेवेन्यू इम्प्लीकेशन नहीं है, उसका ऐसा कोई इम्प्लीकेशन नहीं है कि जिससे टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होती है. दैट इज, एक तो ब्लॉक क्रेडिट का फिगर लिखना और ऐसी B2C सप्लाईज जो इंटर स्टेट सप्लाईज है वो. तो हमारी जो टेबल है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, जहाँ पे हमसे ब्लॉक क्रेडिट का फिगर पूछा जाता है 17/5 का, वो हम फिगर नहीं लिखते बिकॉज उसका कोई इंप्लीकेशन नहीं है, वो हमारे प्लस माइनस में कहीं आती नहीं, इट इज ओनली इंफॉर्मेशन. सेकेंड, हमने कितनी B2C सप्लाईज करी है इंटर स्टेट, उसका एक अलग से इंफॉर्मेशन मांगी जाती है GSTR 3B में, जो कई बार स्किप हो जाती है क्योंकि अदरवाइज हम पूरी टैक्स लायबिलिटी 3B में डिस्चार्ज करते हैं, बट इंफॉर्मेशन कई बार हम स्किप कर देते हैं. नाउ देयर इज अ सर्कुलर व्हिच इज गोइंग टू बी इशूड एंड दैट सर्कुलर विल से दैट इफ यू डोंट पुट दिस डिटेल्स, आपके ऊपर एक जनरल पेनल्टी है जो 50,000 रुपए की लगाई जाएगी. उसके पीछे का पर्पस ये है क्योंकि गवर्नमेंट ये पैसा अपने आपस में सेटल कर सकती है. गवर्नमेंट कैन ऑलरेडी सेटल दिस अमाउंट अमंग्स देमसेल्व्स. But if we do not punch this detail in the return, तो सरकार को फिगर के बारे में पता नहीं चलता है. तो ये जो IGST का सेटलमेंट सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में करना पड़ता है, वो सेटलमेंट डिले हो जाता है जब तक हम एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते. तो गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है उसके अंदर. गवर्नमेंट अपने नुकसान को सेफगार्ड करने के लिए विल कम आउट विद अ सर्कुलर दैट ऑल दोज पीपल हु आर फाइलिंग GSTR 3B दे हैव टू इंश्योर कि वो अपनी ब्लॉक क्रेडिट की डिटेल और B2C IGST की डिटेल्स को करेक्टली फिल करें. सो हम सब लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं, हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हम ये डिटेल्स डालें और हम इनके रिस्पेक्ट में वी डोंट स्किप दिस. फेक इनवॉइसिंग का इशू एक बड़ा इशू है. आई एम श्योर हम में से कुछ लोगों को ऑलरेडी नोटिस आए हैं जहां पे बोला आपका सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट है, उस जगह पे पाया नहीं जाता है, या फिर उसने जो सप्लाईज करी है उसने बोला उसने सिर्फ बिल दिए हैं, सप्लाई नहीं करी है, व्हाट नॉट. इसके ऊपर आज की तारीख में कोई स्टैंडर्ड SOP नहीं है कि विभाग को इन केसेस को हैंडल कैसे करना है. अगर कोई नोटिस आता है, देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच द ऑफिसर विल से, आप टैक्स जमा कराइए, ब्याज जमा कराइए, 15% पेनल्टी जमा कराइए. बट इट मे नॉट बी द करेक्ट पोजीशन एवरी टाइम. नाउ इसके रिस्पेक्ट में क्या चीज है जो गोइंग फॉरवर्ड, कैसे इनके असेसमेंट होंगे, कैसे इनका शो कॉज बनेगा, कैसे इनका ऑर्डर पास होगा, उन सब के रिस्पेक्ट में क्लैरिफिकेशन है which is expected. We should wait for that clarification and accordingly we should take a decision in that regard. Last thing before I put an end to the updates which have been there, I know a lot of updates are there, but still this is the final last thing which is there is एक बहुत अच्छी चीज है जो काउंसिल ने जिसको अप्रूवल दिया है, जो एक अननेसेसरी का फिफ्रिस लिटिगेशन था. मान लीजिए मैंने मेरा रिटर्न नहीं फाइल करा कुछ पीरियड तक एंड बिकॉज आई हैव नॉट फाइल्ड माय रिटर्न, मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया. अब उसके लिए मुझे रिवोकेशन फाइल करना था, बट मेरे रिवोकेशन की समय सीमा भी जा चुकी है.
Now the only option which is left with me is appeal. वो ऑर्डर आने के 3 महीने के अंदर अपील दाखिल करना। मान लीजिए वो समय सीमा भी जा चुकी है, अब ऑल ऑफ अस वंडर कि इसका सॉल्यूशन क्या है। विभाग का अफसर कहता है कि मैं आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक करने को तैयार हूं, बट मेरे पास सिस्टम पे ऑप्शन नहीं है। अपील अथॉरिटी कहती है कि 3 महीने का समय जा चुका है, मैं अपील एंटरटेन नहीं कर सकता। बट दोनों कहते हैं कि अगर आप रिटर्न भरने के लिए तैयार है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन रिवोक करा सकते हैं। नाउ देयर इज गोइंग टू बी अमेंडमेंट इन द रूल 21A विच सेज कि जैसे ही अगर आपका रिटर्न रजिस्ट्रेशन इसलिए कैंसिल हुआ कि आपने रिटर्न नहीं दाखिल करे, आप जब भी अपना रिटर्न दाखिल करेंगे डेट ऑफ सस्पेंशन तक का, आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली रिवोक कर दिया जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी ए गुड चेंज, अननेसेसरी का लिटिगेशन। विभाग का अफसर भी नहीं चाहता कि आपका रजिस्ट्रेशन परमानेंटली कैंसिल रहे, असेसी भी वो बिजनेस करना चाहता है, रजिस्ट्रेशन रखना चाहता है। सो दिस इज गोइंग टू बी वन गुड चेंज विच विल बी देयर। आपके जितने भी सप्लायर्स जिनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हुए हैं और वो आपसे टैक्स का पैसा लेके बैठे हैं और उन्होंने टैक्स नहीं जमा कराया है, उस कारण से आपकी 2A में क्रेडिट नहीं दिख रही है, maybe once this rule will change, you can tell them, you can force them to file the pending returns along with interest so that their registration is revoked and you're able to say their input tax credit in your concerned GST returns. So I think with this probably जितने भी changes थे जो हमारे काम के changes हैं, जो मुझे लगा कि हमें discuss करके उनको highlight करना important है, that I have shared. Otherwise also आप सबको through email or through WhatsApp our detailed note on the summary changes would have already come. In case they have not come, you may contact to any of the CRMs. Important thing again I'm saying is ये एक press release जो council की तरफ से आया clarification उसके respect में है। Actual notification circular का हमको wait करना पड़ेगा regarding the dates, regarding the technicalities, regarding the details. So the all of them are not applicable right now, but yes हमारे पास we have good 2 weeks time to get ourselves prepared. To look at it कि कहाँ ये हमको impact करता है and to basically have necessary preparation for it. Now, if there are any question and answer, I'll be very happy to take those questions. I see one question in the chat box. Yes. So Rupali ji has asked, hello sir, does clarification on renting a motor vehicle in 47 council will make any difference with the earlier position? Please clarify. One change it makes, ये एक interpretation का change है जो motor vehicle के respect में है, जो ये circular लेके आता है. That is ट्रांसपोर्टेशन सर्विस और रेंटिंग और मोटर व्हीकल में फर्क है। अभी हम क्या करते हैं, हमारे जहां अग्रीमेंट ट्रांसपोर्टेशन के भी होते हैं उसके ऊपर भी हम रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर देते हैं, ये समझते भी कि वो रेंटिंग और मोटर व्हीकल है, जबकि रेंटिंग और मोटर व्हीकल एक अलग सर्विस है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए पैसेंजर इन अ मोटर व्हीकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलग सर्विस। अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से है कि पॉइंट टू पॉइंट सर्विस चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं, कंपनी के केस में एक बस ली गई और कंपनी ने बस वाले को बोला दैट यू हैव टू पिक माय एम्प्लॉइज फ्रॉम एक्स पॉइंट एंड यू हैव टू ड्रॉप देम टू वाई पॉइंट। यू मे पिक देम फ्रॉम एक्स वाई जेड ए बी सी डी पॉइंट, जो उनके अलग अलग पॉइंट्स हैं, पर आपको उनको मेरी फैक्ट्री तक लेके आना, वापस फैक्ट्री से उन पॉइंट्स पे छोड़ना है। ये बस हायर की सर्विस नहीं है, ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है जिसपे आरसीएम की लाइबिलिटी नहीं आती है। बट अगर सर्विस ऐसी है कि ऑन पर मंथ बेसिस आई हैव टेकन द बस ऑन हायर लेट्स से फॉर लेट्स से 60,000 रुपीज और 40,000 रुपीज और 2 घंटे के लिए मैंने बस किराए पर ले ली, अब उसमें मैंने ये नहीं लिखा मैं क्या कराऊंगा, बट आई हैव सेड आई हैव टेकन द बस ऑन हायर फॉर 2 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस, वो सर्विस है जो रिवर्स चार्ज में कवर्ड है। सो आई थिंक आई एम एबल टू क्लियर, ये 2 अलग अलग तरीके के ट्रांजेक्शन है। कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से लिखा हुआ है वो तय करेगा कि रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी आएगी नहीं आएगी। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ये भी तय करेगा कि आपको क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में क्रेडिट अलाउड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के केस में इन सम केसेस यू विल बी एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट सब्जेक्ट टू अगेन डिपेंडिंग अपॉन कॉन्ट्रैक्ट केस। सो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस हियर। बाकी व्हेन द एग्जैक्ट सर्कुलर विल कम probably you'll be able to understand a little more. Okay, if anybody has any question आप hand raise कर सकते हैं or maybe you can just type the question in the chat box and if we'll look at it that how can we answer the question. So back to you, Shruti. I think we do not have any questions up till now. Yeah. So one question is there. जी sir, बोलिए गौसल। हाँ सर जी हेलो सर जी बोलिए।
एक MMTC से 2018 और 2019 का मैटर था जी हमने एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट में उसमें गोल्ड लिया था जी जो कि ड्यूटी फ्री भी था और GST भी उस पे लग के नहीं आ रहा था जी और सारे रॉ मटेरियल GST देके हम लोग आ रहे थे जी उसको हमने पेबल में लगाया था जी तो एक बार हमारे को डिमांड भी आई थी कस्टम से कि जी आपने MMTC से ये ड्यूटी फ्री और बिना GST के माल खरीदा है जो कि उसको पेबल में लगा के आपने रिफंड लिया है जो कि गलत है। करेक्ट। तो सर उस केस में हमारे पास डिमांड भी आई थी हमने उनसे बात भी की थी लेकिन वो पता नहीं मैटर का क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो उस केस में हमारे साथ क्या होगा अब? ये कर सकते हैं कि आप वो पैसा जमा कराए रिफंड का और जमा हाँ करा के एक PMT 03 है जो आपके जुडिशल ऑफिसर को आप बोल सकते हैं और वो जो हाँ भी हाँ। आप पैसा जमा कराएंगे टैक्स का वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वापस आ जाएगा जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए। तो उसको रिफंड तो नहीं कर सकते क्या हम? नहीं, आपने जो रिफंड तो रूल 96 सब रूल 10 है जो हाँ रिस्ट्रिक्ट हाँ करता है कि अगर आप कोई ऐसा इनवर्ट खरीद रहे हैं जिसके ऊपर आप IGST का छूट ले रहे हैं स्पेसिफिकली अगर वो हाँ एडवांस हाँ ऑथराइजेशन के अगेंस्ट है तब आप हाँ। IGST लगाकर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन सर वो तो हमारे जैसे टोटल इनपुट बन रहा था 50 लाख रुपए का और जो रॉ मटेरियल हमने एडवांस ऑथराइजेशन में लिया था ना उसमें करेक्ट ओनली इनपुट बन रहा था 5 लाख रुपए का करेक्ट तो 45 लाख का तो हमारा अदर रॉ मटेरियल था जो कि 18% में भी था 28 में भी था 12% में भी था। करेक्ट। सो इसके हाँ रिस्पेक्ट में जो रूल है वो रूल ये कहता है कि अगर आपने इंपोर्ट किया है और उस माल से आपने जो माल एक्सपोर्ट किया है अभी जो हाँ ये वर्ड ये मैंने बोला जिस माल से आपने एक्सपोर्ट किया है बट हाँ इंटेंशन उसका यही है बट रूल सेज वंस अगर आपने एडवांस ऑथराइजेशन में कुछ खरीदा है तो उसके हाँ अगेंस्ट में जितना भी एक्सपोर्ट है उस पर आप IGST नहीं लगाएंगे। आपके पास एक ऑप्शन और है अगर हाँ आपने MMTC से खरीदा आप MMTC को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको एक डेबिट नोट इशू कर दे टैक्स हाँ का। हाँ आप हाँ MMTC को उस टैक्स का पेमेंट कर दीजिए और आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिए पेमेंट जो किया हुआ लिखा है। हुआ भी है। जो लिखा हुआ भी हाँ अगर आपने MMTC को टैक्स का पेमेंट कर दिया है हाँ सब्सिक्वेंटली तो आप इस हाँ। रूल 9610 से बाहर आ गए हैं फिर आपसे कोई रिफंड का पैसा वापस नहीं ले सकते। अच्छा अच्छा ओके ओके किया हुआ है MMTC को रिफंड का पैसा दिया हुआ करेक्ट। तो अगर आपने इनवर्ट साइड के ऊपर अपना वो टैक्स सब्सिक्वेंटली पे कर दिया देन यू कैन कम आउट ऑफ इट देयर इज नो प्रॉब्लम। चलो सर ओके Okay. ओके सर ओके। There is one more question regarding revocation or cancellation. Does this change will be applied to person only whom SCN issued or GST suspended, or also applicable for whom already cancelled order issued? Good point. Actually, for this you have to wait. So अगर आप press release पढ़ेंगे तो press release पढ़ के लगता है ये सिर्फ suspension वाले cases के ऊपर है. However, जितना I have been able to understand, this will be applicable for all those cases also whose registrations have been cancelled. So probably we have to wait for couple of days more to find what they do really right in the amendment. But the spirit इसका यही है कि unnecessary वो appellate authority के पास इन cases को नहीं भेजना चाहते because any which way they do not want कि उनका assessee base कम हो इस कारण से कि उन्होंने return नहीं पहले फाइल कर अब वो return फाइल करना चाहते हैं. Okay. So I think with this now we can come to the close. We have already reached to the conclusion time. Thank you so much for your patient hearing. Shuchi, you may close now. Thank you so much, Yash sir. I think the clients and the professional colleagues have been enriched with the discussion and analysis on the recommendations. For the benefit of all, as sir has already told in the deliberation, people from Dada and Company have been assigned as client relationship manager to every client. So a message will be circulated to the clients which do not have a point of contact from DCO right now, and others are hopefully aware about their CRM. So any communication with DCO in any regard you can make to your CRM, and the matters will be dealt by the firm in that hierarchy. For queries related to this conference also, you can reach out to us, to Yash sir or your respective CRMs, and we'll address your queries. Thank you so much for your patient listening. Thank you. We're closing.